بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جاننے والے ہیں، جسے سن کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و ستم کا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، جو کہ تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کس طرح سے آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ پورا واقعہ سن کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ گزارش ہے اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں اور سنیں، اور اسے اور لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ اور ایسے ہی سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا، وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ شام کو تھک ہار کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے۔ رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے تو نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये बात जब हज़रत बिलाल के मालिक को पता चला कि मेरे ग़ुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस ग़ुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। हज़रत अशार बिन सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, इसे तुम किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हज़रत सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे, वैसे वैसे उसकी ज़बान से आह आह की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे। कभी उसके हाथ पैर पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेड़ियां ठोक रहे थे, तो कभी उसकी ज़बान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पाँवों में रस्सी डालकर उनको घसीट रहे थे। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा, ऐ बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? तो हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि ये ऐ शख्स, अगर तुम बाज़ार में मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगे तो उसको भी तुम ठोक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं। इसी तरह से मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मेरी खाल भी उधेड़ दी जाए तो भी मैं हक की सदा बुलंद करता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुज़र रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो गया और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे हैं। उसको उठाते हैं और फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं, और वो 5वां अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो 4 लोग उसको ज़मीन पर पटकते हैं तो वो 5वां शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मंज़र देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया। मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहूलुहान था। उसका पूरा जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक हक की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ऐ लोगों, रुको, तुम ये क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे, क्योंकि ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम उसे इतनी ज़्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाएगा, फिर हम इस पर और जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन पांचों ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी कि ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दुगनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स को यहाँ से लेकर ही जाता। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है इस काले रंग के गुलाम में जो तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर तुम इसे खरीद रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी, यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनार और दिरहम मंगवाई। उन लोगों को देकर उस गुलाम को आज़ाद करा दिया। हज़रत बिलाल लहूलुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं और कहने लगे, ऐ अबू बकर, आज अगर तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा के अब एक और एहसान मुझ पर कर दो। मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। तो दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म सहन किए और किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त किए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह भी उस गुलाम पर फ़ख्र करते हैं, उस गुलाम का सदका मांगते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मांगते हैं। हज़रत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मकाम अता किए जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और सच्चा आशिक़ नबी बनने की तौफ़ीक दे। आमीन।